Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, your VTC teacher. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, today in this session we are going to learn about perimeter and area. This is our 12th topic of standard 5th in mathematics subject. So in this session, students will especially talking about area and practice set 50. तो बच्चों, आज के सेशन में हम पंचम जमात में रियाजी मजमून में बात करेंगे। जो हमारा सबक है रकबा और अहाता, इसमें रकबे के बारे में हमने जो है तो इससे पहले के सेशंस में बात की है और आज हम जो है तो रकबे के ज़ाब्ते के ताल्लुक़ से बात करेंगे और साथ ही जो है तो प्रैक्टिस सेट 50 यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम एरिया से। यहाँ पर बच्चों एक ये तरसीमी कागज़ को आप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरसीमी कागज़ के ताल्लुक़ से आपको बताते चलें। इससे पहले भी हमने आपको बताया है, लेकिन फिर भी एक बार और इसका रिपीटेशन हम यहाँ पर कर देते हैं। इसमें हम यहाँ पर जो ये डार्क लाइंस देख रहे हैं, ठीक है, ये लाइंस जो है तो आमतौर पर ये जो लाइंस होती है, इसमें जो डार्क लाइंस है ये 1 सेंटीमीटर को इंडिकेट करती है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप इस फिगर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल ABCD है ना। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इस फिगर में दिस इज 1, thereafter this will be 2, then this will be 3, this will be 4, and this is 5th, and this is 6. So in this figure, rectangle ABCD has 6 square of 1 centimeter each inside it, and it means that its area is 6 square centimeter. ओके, बच्चों जैसे आपने इस फिगर का ऑब्जर्वेशन किया है, तो इससे आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको यहाँ पर समझ में आया है कि यहाँ पर जो है तो इस शक्ल में ABCD जो ये कि मुस्ततील है, इसमें एक सम ज़िले वाले 6 मुरब्बे हैं। ठीक है, इसलिए मुस्ततील ABCD का रकबा जो है तो 6 सम है। ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है ना। In the same way, count the numbers of squares in each figure and write its area. यहाँ पर हमें जो है तो अब हम आपको कुछ यहाँ पर शक्लें बता रहे हैं, उनमें हमें मुरब्बों की तादाद जो है तो गिनना है और हर शक्ल का जो है तो रकबा यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं here is a figure और rectangle MNRS is here. So you are supposed to observe how many square are here in this figure. So this one is 1, this is 2, number 2, number 3 this one, number 4 this one, number 5 this one, number 6 this one, number 7, number 8, and this one is number 9. So you're observing that, and this rectangle or this square ABCD,
MNRS is 9 square centimeter. Okay, and now we move for the next figure. So in this figure you are supposed to observe how many square are here. So you will see here that this 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So the area of a square EFGH is equal to 4 square centimeter. And now observe this figure. So in this figure, the area of rectangle PQRS, you are observing that this one, this is second, this third, this fourth, and this is fifth. So here area of square PQRS is equal to 5 square centimeter. Okay, like this. And now observe this figure. Here is a figure, the area of rectangle IJKL. So here this one, this is second, this is third, and this one is fourth, this one is fifth, this is sixth. Okay, so you are observing that there are total 8 square centimeter in this rectangle. Okay, so this is a rectangle actually, and this one third figure is also a rectangle. This one is also a rectangle. Okay, this is not a square. Okay, so make it clear that this is a rectangle. ठीक है, ये क्या है, ये जो है तो मुस्ततील है ना। तो मुस्ततील PQRS का रकबा हमने देखा 5 सम है। मुस्ततील IJKL का मुरब्बा हमने रकबा हमने देखा वो जो है तो 8 मुरब्बा सम है ना। इसी तरह से मुरब्बा जो MNRS है, इसका रकबा हमने देखा 9 मुरब्बा सम है। इसी तरह से मुरब्बा अगर देखें आप EFGH, तो ये 4 मुरब्बा सम है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है तो हमने यहाँ पर अभी ऑब्जर्व किया है एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी जो याद रखना है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि सेंटीमीटर लंबाई की मियारी इकाई है। ठीक है, हम cm से जिसे जाहिर करते हैं। देन द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर। मुरब्बा सेंटीमीटर जो है तो मुरब्बा सम रकबे की मियारी इकाई है ना। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर। किस तरह से जाहिर करते हैं हम इसको, SQCM से जाहिर करते हैं, सेंटीमीटर को cm से। ओके, स्क्वायर मीटर and square kilometer are the larger unit of area. These are used to measure larger areas. यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि मुरब्बा मीटर और मुरब्बा किलोमीटर भी रकबे की मियारी इकाइयाँ हैं। बड़े रकबे नापने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसे समझा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ एरियाज। यहाँ रकबे के ज़ाब्ते हम देख रहे हैं। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। रकबे के ज़ाब्ते के बारे में बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं मुस्ततील का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है ना। इसी तरह से द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड इनटू लेंथ ऑफ अ साइड। ठीक है,
अगर हम यहाँ पर देखें मुरब्बे का रकबा, तो ज़िले की लंबाई ज़रब ज़िले की लंबाई होता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ज़रूरी तौर पर याद रखना है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 50, जो है हमारा प्रॉब्लम सेट 50 उसे यहाँ पर। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज गिवन बिलो, फाइंड इट्स एरिया। So here's the question number 1, 2, 3 and 4. So first question, the length of the side is given here 12 meter. So the length of the side of the square is equal to 12 meter. So the area of a square is equal to length of the side into length of the side, है ना। मुरब्बे का रकबा अगर हम देखें तो क्या होता है, ज़िले की लंबाई ज़रब ज़िले की लंबाई। तो कितना दिया है, 12 दिया है ना। तो 12 ज़रब 12 कितना हो गया, 144। तो आप देखेंगे 144 स्क्वायर मीटर, 144 मुरब्बा मीटर हो गया ये। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड, the length of the side of the square meter is 6 in the second question. So the area of a square is equal to length of the side into length of the side, and that is 6 into 6. So 6 into 6 will be 36 here. Okay, 6 into 6 is equal to 36. Okay, so you will see here that answer will be 36 square centimeter for the second question. And now the third question is 25 centimeter. So you will see here the length of the side of the square is equal to 25 meter. Okay, so the area of the square is equal to length of the side into length of the side. So 25 into 25 will be 625 square meter. Okay, like this. And now the fourth question is 18 centimeter. So the length of the side of the square is equal to 18 centimeter. So the area of the square is equal to length of the side into length of the side, and that is 18 into 18 is equal to 324 square centimeter. Okay, like this. तो ये हमारा जो है तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ओके, सो यहाँ पर हम जो है तो अब इसके बाद में बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। So if the cost of 1 square meter of a plot of land is 900 rupees, find the cost of a plot of land that is 25 meter long and 20 meter broad. Okay, so the solution here, the length is equal to 25 meter and breadth is equal to 20 meter. Okay, so the area of the plot of land is equal to length into breadth. So 25 into 20 is equal to 500 square meter. Okay, so the cost of the 1 square meter plot of land is equal to 900 rupees. So the cost of 500 square meter of plot of land is equal to 900 into 500, and that is 4,50,000. Okay, so the cost of the plot of land is 4,50,000 rupees. ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर देखा इस सवाल में कि 1 मुरब्बा मीटर जो ज़मीन की कीमत है वो 900 रुपये है। तो 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े ज़मीन मुस्ततिल नुमा ज़मीन के हिस्से की कीमत यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ हमने देखा इसकी लेंथ इतनी है और जो चौड़ाई है वो जो है
तो 20 है। ठीक है, तो ज़ाब्ते में हमने इसे रखा है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपने देखा यहाँ पर हमें एरिया मालूम हो गया 500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देखा कि जो ज़मीन की कीमत है वो कितनी है, 900 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ज़मीन की कीमत ज़रब ज़मीन का एरिया। ठीक है, तो एरिया हमने देखा यहाँ पर एरिया कितना है, यहाँ पर 500 है। तो 9 इंटू 500 स्क्वायर सेंटीमीटर किया तो हमें यहाँ पर मिला है 4,50,000 रुपीज़, है ना। इस तरह से तो हम देखेंगे कि मुस्ततिल नुमा जो ज़मीन का हिस्सा है उसकी कीमत कितनी होगी, 4,50,000 इस तरह से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, the length of rectangle is 8 centimeter and its width is 2 centimeter. Find the perimeter and area of the both figures. तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले the perimeter of square is equal to 4 into length of one side. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये मुरब्बे का रकबा अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो मुरब्बे का ज़िला, यहाँ पर हम मुरब्बे का रकबा अगर मालूम करते हैं तो कितना होता है, मुरब्बे का रकबा बराबर यहाँ पर आपको मालूम है कि ज़िले की लंबाई ज़रब ज़िले की लंबाई होता है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें पैरामीटर देखना है ना, सो द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड होता है ना, सो दैट इज 4 इंटू 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर। ओके, सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड एंड दैट इज 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, 16 square centimeter. So the perimeter of a rectangle is equal to 2 into length plus 2 into breadth होता है ना। So 2 into 8 plus 2 into 2 is equal to 16 plus 4 centimeter is equal to 20 centimeter. So the area of rectangle is equal to length into breadth. So that will be 8 into 2 means 16 square centimeter. So the perimeter of a square is 16 centimeter and its area is 16 square centimeter. Okay, so the perimeter of rectangle is 20 centimeter and its area is 16 square centimeter. Okay, like this. And now we are moving for the next question here, and that is what will be the labor cost of laying the floor of an assembly hall that is 16 meter long and 12 meter wide if its cost if the cost of laying 1 square meter is 80 rupees. ठीक है, हमें यहाँ पर देखना है बच्चों, सवाल क्या पूछा है यहाँ पर हमें कि 80 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर के हिसाब से 16 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े हॉल में फ़र्श लगाने की मजदूरी कितनी आएगी, यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है द एरिया ऑफ असेंबली हॉल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितनी दी है 16 और ब्रेथ कितना है 12, so it will be 192 square meter. So the cost of laying 1 square meter is equal to 80 rupees है। ठीक है, so the cost of laying 192 square meter is equal to 80 into 192, that is 1,53,600 and 300 actually 360 is that. $360 actually this is.
this will be 0 here. So the cost of laying is 15,360 rupees. Okay, like this. तो कुल मजदूरी हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि कितनी होगी, 15,360 रुपये होगी इस तरह से। ठीक है, याद रखिए इसे। अब इसके बाद का सवाल दिया है, द फिगर गिवन शोज सम स्क्वायर्स, फाइंड out how many squares with the same measures will fit in the empty space in the figure. ओके बच्चों, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि यहाँ पर जो शक्ल आप देखेंगे अभी, ये शक्ल को, तो इस शक्ल में यहाँ पर आप जो शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं, इस शक्ल में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है तो चंद मुरब्बे दिखाए गए हैं इस मुस्ततिल के खाली हिस्से में। इसी पैमाइश के और कितने मुरब्बे बन सकते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा द एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 है ना। यहाँ पर आप देखेंगे 4 है और यहाँ पर 3 है ना। So it will be 12 square units. So 6 squares are shown in the given figure. इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि कुल यहाँ पर कितने फिगर बैठेंगे, 6। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 minus 6 square will be fit in the empty spaces. अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो खाली हिस्सा है, ब्लू कलर का हिस्सा है, वहाँ पे 6 जो है तो मुरब्बे यहाँ पर बैठेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, है ना। टोटल यहाँ पर जो है तो इस खाली हिस्से में आपने देखा यहाँ पर कितने बैठे हैं स्क्वायर, 6 स्क्वायर्स यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, so 6 squares will fit in the empty spaces. This will be the answer. Now divide the given figure into 4 parts in such a way that the area and the shape of each part is the same. Color the parts with the different colors. ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से दिया हुआ है फिगर। ठीक है, the given figure is divided into 4 similar parts, okay, by the different shades as shown below. यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ये देखेंगे आप यहाँ पर okay, this one is the same area, same color, and afterwards this one is the same color. Okay, and this one will be the same color here. Okay, and this one will be the same color here. Okay, like this. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो प्रैक्टिस सेट 50 आपके सामने रखा है, इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।